See, Gargi Punch is one of those sectors which has been under heaviest shelling for the last 3-4 days. Visuals from my camera person will show you. This is one car. This is the chalk in the main bazaar where on just a couple of days ago we saw around 16 deaths in Punch due to shelling, and this particular chalk saw 2 deaths. One on my left in the frame, you'll see this is one shop. A gentleman was inside the shop. You can see those marks on the shutter here. A gentleman inside the shop was hit with the splinters and he was killed. Another man, he was also here in the same chalk here, and he was also hit by the shelling and then he was killed. On that very particular day, on this side on my right is a Gurdwara Sahib which was badly hit, which you must have seen in the reports. We had covered it earlier as well. And the population here says that the shelling has been heaviest in the last couple of days. Even today morning, the shelling happened till 6:30. Even in the sun, under the sunlight, there were sounds of explosions and all. And this location, particular location, is just very close to the international border. Just 1 kilometer in the radius, this entire area is located from the international border. I am joined here by Mr. Manmohan Singh, one of the residents here. Then we also have the head of the Gurdwara Management Committee of the local Gurdwara, which was badly hit here. Sir, first to you, what is the situation right now, since there is no shelling as of now, but what are you anticipating? What I feel, there is no shelling, no doubt, but still the people are facing very panic over here, overall panic. Everybody is very panic. So a lot of people have migrated from this particular place, and much has already been lost by we people. At least 13 lives we people have lost, including our Ragi, Amrik Singh ji. Just here, he has lost his last breath. तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान जो है वो पुंछ के अंदर हुआ है, और फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर facing such a type of shelling over here. So, Manmohan Singh ji, you were telling that this city, Punch, has a very small population in this particular area where we are based, and it's a city of mixed population. Can you tell us that what is the current situation now? Blackout has been ordered in multiple districts of Jammu region. So what is the ground situation here right now? As already you have heard that the situation is very tense. People are panicked due to this shelling, and now most of the peoples have migrated from here. बहुत से लोग यहाँ से उस पैनिक की वजह से चले गए, और उसकी वजह सबसे बड़ी है कि इन लोगों का जो है, इनको ना तो ऑलरेडी पहले से इन्फॉर्म किया गया कि जो ऐसे हालात बन रहे हैं आप इसके लिए अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वी वर प्रिपेयरिंग फॉर अ मॉक ड्रिल जो वेरी नेक्स्ट डे होने वाली थी। तो उसमें ऐसा रहा कि जैसे ही ये रात को इंडिया ने स्ट्राइक किया, तो उस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। उस रिटेलिएट में जो शेलिंग इस पुंछ सिटी पे हुई या इसके पेरीफेरीज पे हुई, तो उसके बाद एक पैनिक जो थी वो फैल गई, और वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही हमारे लोग मार्केट में निकले हैं, तो उसमें ये जो शेल्स वगैरह पुंछ सिटी के अंदर गिरे, और जिसमें अभी आपने सुना है कि हमारे कुछ लोग जो थे उनकी जान जो है वो चली गई है, कीमती जान चली गई, और उन लोगों के लिए तो ये एक किस्म का वर्ल्ड वॉर हो चुकी है। वो उनके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। लोग पैनिक में, और लोग यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं। तो हमारे बुजुर्ग जो थे वो 1947 में माइग्रेट होके यहाँ पे आए, और इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया ओनली ड्यू टू आवर एल्डर्स। हमारे जो फोर फादर्स थे उनकी वजह से ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया है, क्योंकि हम अगर उस हिस्ट्री को देखें तो सेवियर ऑफ पुंछ ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जो थे, उन्होंने इन लोगों को यहाँ पे रोक लिया था कि आप लोग यहाँ पे रुकिए, इस इलाका को ना छोड़िए। और उसके बाद यहाँ तक ये लोग जो हैं ये इस बॉर्डर पे पूरे इस देश की दीवार बन के बैठे हुए हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन के अंदर अगर इन लोगों को संभाला नहीं जाता, जैसे अभी आप सुन रहे थे कि ये जो हमारे लोग मारे गए हैं, ये कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, इनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस नहीं है, ये लोग हैंड टू माउथ हैं, मीडियम क्लास हमारी फैमिलीज हैं। तो इन लोगों को अगर ऐसे जान भी जो है वो खतरे में चली जाएगी, तो फिर नेचुरल लोग माइग्रेशन, और ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं कश्मीर से लोग माइग्रेट हो गए अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन बावजूद उसके भी ये लोग यहाँ पे रहे हैं। मनमोहन सिंह जी, एक आप मैसेज देना चाह रहे थे मेट्रो सिटीज में जो लोग खबर देख रहे हैं, जो लड़ाई पे नजर बनाए हुए हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, आपने जो क्वेश्चन किया है, मैं उस संदेश में जो मैसेज आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द सिचुएशन इन द बैटलफील्ड, वो यहाँ पे ही आपको आके पता चलेगी। कहीं पे स्टूडियो के अंदर बैठ के या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की सड़कों पे खड़े होकर किसी जय जयकार के नारे लगाने
वो कोई देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति और लॉयल्टी वो है जब आप किसी बैटलफील्ड में या बॉर्डर एरिया के अंदर दीवार बन के बैठे हुए हो। रुके, अगर ये लोग भी यहाँ से चले जाएंगे तो फिर आप बताइए ये एरिया कैसे हम कहेंगे कि ये इंडिया का पार्ट एंड पार्सल रहेगा। तो हम सरकार से भी यही कहेंगे कि इन लोगों को डिफेंस भी इनका किया जाए और इन लोगों का जो है फ्यूचर जो है उसको सेव किया जाए। एम्प्लॉयमेंट पहले ही खत्म हो चुकी है, ये इट इज वेरी मच क्लियर। थोड़ा समय की कमी है, मैं जी। आपका संदेश आगे दोबारा कैरी करेंगे। सो दिस इज द अंडरलाइंग सेंटिमेंट हियर दैट दे वांट प्रॉपर फैसिलिटीज, सिक्योरिटी एंड ऑल्सो no jingoism, but they say that the situation is very dire. It was never like that even in the previous wars as well, that they were getting directly hit from the shelling. 16 people were killed. The situation is still tense. The bigger concern is that people are now even migrating from here in Poonch. Mohammad Ghazali for NDTV.